Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. The candidates, those who have qualified IBPS clerk of PO, SO in the 10th selection, they are eagerly awaiting their joining. A number of these candidates are putting their inquiry in the comment column, sir, when we can expect our joining. Now, if we look the current scenario, it is very unlikely that your joinings may start before July, because some of the joining that was in pipeline, more especially RRB in Rajasthan, got delayed due to coronavirus. Some of the RRBs have put the notice that their DV dates are now postponed. The same thing may happen for many other DVs, because number of states are now imposing lockdown. Number of states, the transportation is not freely available. So a period of uncertainty has set in. And daily we are watching around 2 lakh cases per day are coming. So everybody have to wait for cool off period when things will settle and the normal processes may go on. So what should be done during this free period? That is a question mark. Now some of you are selected for clerk, some of you are selected for PO, some of you are selected for SO. So there are 2 type of examination on that you should focus. So if you are already an officer cadre selected, my advice will be focus on JIIB. Start preparing. You cannot appear because you are not now, as on date, you are not employees. But the moment you get the joining in the institution, you can take the membership and appear in first available examination. But time is at your disposal. So instead of wasting our energies in waiting for joining or DV, channelize your energies towards reading material meant for JIB. I am providing you link of a very good course in the description and comment column. Subscribe this course and start reading, because this knowledge is going to help you. Second thing is, if you are thinking of preparing for PO examination, say you are selected in a clerical post, then you should prepare for PO as well as JIB side by side. Focus on both. There should not be any ambiguity in your mind that what should I choose. Don't choose anything. Do both, because now you are selected for one job. You must strengthen your position in the organization. But yes, you can try for other jobs. Competition is very high. Probability of selection there may not be so high. But if you clear JIB, you immediately get the increment. Your salary goes up. Your affordability will go up. So you should definitely choose JIB course and side by side choose the another competition. So I am providing all the necessary links in the description. Further, I am providing link of my Telegram group also, where some material like book on grammar is available free of cost. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी सिलेक्शन हुई IBPS क्लर्क, PO एंड SO में 10th सिलेक्शन में. अब इनमें से काफी लोग चिंतित हैं, सर DV कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी. जो अभी के हालात हैं उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि जून तक इसके होने की संभावना काफी कम है. जो कुछ भी ये होगा जुलाई ऑनवर्ड्स ही होगा.
क्योंकि कई डीवीज थे आरआरबी के, खासकर जैसे राजस्थान में थे, वो डेफर हो गए हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं इस समय जो कोरोना केसेस हैं वो पीक पे हैं, 2 लाख की एवरेज आ गई है। कई जगह ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, कहीं पर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कहीं लॉकडाउन है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि रश करके बैंक कोई डीवी करेगा या ज्वाइनिंग कराएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपकी हो चुकी है। अब उनको सिर्फ ज्वाइन कराना है, तो और 31 मार्च 2022 तक का टाइम है उनके पास ज्वाइन कराने का। तो हर बैंक कूल ऑफ का वेट करेगा, क्योंकि ऐसे में एम्प्लॉइज भी कम आ पाते हैं बैंकों के अंदर, कहीं छुट्टी पे चले गए होंगे, कहीं बीमार होंगे, और पब्लिक डीलिंग भी करनी है। तो ये सब चीज़ें डेफर होना स्वाभाविक है। लास्ट ईयर भी कोरोना पीरियड के अंदर ज्वाइनिंग्स लेट ही हुई थी, तो इस बार उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल है कोरोना की स्थिति। तो मेरा अपना मानना है कि ज्वाइनिंग्स जल्दी नहीं होंगी। तो अननेसेसरी इसके लिए हर समय सोचते रहना, टेंशन में रहना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि इस वक्त को कैसे यूटिलाइज करें ये हमें सोचना है। अब आपके पास क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? अगर आप पीओ और एसओ हो गए हैं तो आप जेआईबी की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आप जेआईबी दे नहीं पाएंगे। दे तभी पाएंगे जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे, मेंबरशिप ले लेंगे और फर्स्ट अवेलेबल एग्जाम दे पाएंगे। पर अभी आपके पास टाइम है, तो एक अच्छा कोर्स ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर लीजिए। वो तो आपको फायदेमंद ही रहेगी ना। आप तैयार रहोगे एग्जाम के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन हुई आप एग्जाम में बैठ जाना। तो एक अच्छा कोर्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट में दे रहा हूँ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अफसरों ने, बैंक में अफसर है सीनियर लेवल पे, इन्होंने तैयार किया है, स्लाइड्स की शेप में है और कमेंट्री भी है उसके ऊपर, मॉक टेस्ट भी है इसके अंदर। तो इसको आप यूज़ कर लीजिए। दूसरा, यदि आपका क्लरिकल में सिलेक्शन हुआ है तो आप पीओ एग्जाम की भी तैयारी करिए और जेआईबी की भी तैयारी करिए, दोनों करिए साइड बाय साइड। जेआईबी की तैयारी इसलिए करना जरूरी है कि अगर आप पीओ के अंदर बाई चांस नहीं होते हैं तो जो जेआईबी से आपको एक तो इमीडिएट इंक्रीमेंट मिल जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी जैसे ही पास करेंगे। साथ ही प्रमोशनल एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जैसे ही अवेलेबल अपॉर्चुनिटी आएगी प्रमोशन की, आप उसमें अपीयर हो जाएंगे। तो जिस भी व्यक्ति की जॉब लग चुकी है, मीन्स सिलेक्शन हो चुकी है, उसको अब जेआईबी की तरफ रुख ज़्यादा करना चाहिए। कंपटीशन एग्जामिनेशन को साइड बर्नर पर रखना चाहिए। तैयारी आप करते रहे कंपटीशंस की, पर कहाँ ज़्यादा फायदा है? जेआईबी सीआईबी करके आपकी सैलरी बढ़ रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन एवेन्यूज इंप्रूव हो रहे हैं, तो उसको फोकस करना निहायत ज़रूरी है। उसके ऊपर जोड़ दीजिए। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसको भी ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी आपको मदद मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।